خدا کے حضور میں خدا کے خادم پاسٹر اینجل کلام خدا کی خدمت کے کام کو سر انجام دیں گے، اور سرمن سے پہلے 3 آیات جو خدا کے لوگوں کو دی گئی ہے۔ پہلی تلاوت بہن سنیلا جمشید کریں گی، وہ بھی اسٹیج پہ آ جائیں، اور دوسری تلاوت بھائی میکسن منور کریں گے، وہ بھی اسٹیج پہ آ جائیں، اور تیسری تلاوت بہن مونا نفسید کریں گے، وہ بھی اسٹیج پہ آ جائیں۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ اسٹیج پہ آ جائیں اور اپنے نمبر کے مطابق تلاوت کلام خدا کی کریں۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت پیدائش پہلا باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر باب کے آخر تک۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا، اور خدا نے روشنی کو کہ تو دن کہا، اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو، کہ پانی سے جدا ہو جائے۔ پس خدا نے فضا کو بنایا، اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کر خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیج دار بوٹیوں کو اور پھلدار درختوں کو جو وہ اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں، اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھے اگائے، اور ایسا ہی ہوا۔ تب زمین نے گھاس اور بوٹیوں کو اور جو اپنی اپنی جنس کے موافق بیج رکھے، اور پھلدار درختوں کو جن کے بیج ان کی جنس کے موافق ان میں ہے اگایا۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو تیسرا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا فلک پر نیر ہو کہ دن کو رات سے الگ کرے، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور دنوں اور برسوں کے لیے امتیاز ہو، اور وہ فلک پر انوار کے لیے ہو کہ زمین پر روشنی ڈالے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ سو خدا نے 2 بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر کے دن پر حکم کرے، اور ایک نیر اصغر کے رات پر حکم کرے۔ اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا، اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالے، اور دن پر اور رات پر حکومت کرے، اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کرے۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چوتھا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے، اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑے۔ اور خدا نے بڑے بڑے دریائی جانوروں کو بنایا، اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے باکثرت پیدا ہوتے تھے ان کی جنس کے موافق، اور ہر قسم کے پرندوں کو ان کی جسم
के मुआफिक पैदा किया और खुदा ने देखा कि अच्छा है, और खुदा ने उनको ये कहकर बरकत दी कि फलो और बढ़ो और इन समंदरों के पानियों को भर दो और परिंदे ज़मीन पर बहुत बढ़ जाएं। और शाम हुई और सुबह हुई, सो 5वां दिन हुआ। और खुदा ने कहा कि ज़मीन जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक चुपाए और रेंगने वाले जानदार जंगली जानवर उनकी जिन्स के मुआफिक पैदा करें, और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने जंगली जानवरों और चुपायों को और उनकी जिस्म के मुआफिक जिन्स की मुआफिक और ज़मीन के रेंगने वाले जानदारों को उनकी जिन्स के मुआफिक बनाया। और खुदा ने देखा कि ये अच्छा है। फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत पर और अपनी शबीह की मानित बनाएं। वो समंदर की मछलियों और आसमान के परिंदों और चुपायों और तमाम ज़मीन और सब जानदारों पर जो ज़मीन पर रेंगते हैं इख्तियार रखें। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। और खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को महकूम करो और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो ज़मीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। और खुदा ने कहा कि देखो, मैं तमाम रोए ज़मीन की कुल बीजदार सब्जी और हर दरख्त जिसमें उसका बीजदार फल हो तुमको देता हूँ, ये तुम्हारे खाने को हो। और ज़मीन को कुल जानवरों के लिए और हवा के परिंदों के लिए और उन सब के लिए जो ज़मीन पर रेंगने वाले हैं, जिनमें ज़िंदगी का दम है, कुल हरी जड़ी बूटियाँ खाने को देता हूँ। और ऐसा ही हुआ। और खुदा ने सब पर जो उसने बनाया था नज़र की और देखा कि बहुत अच्छा है। और शाम हुई और सुबह हुई, सो 6वां दिन हुआ। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत है। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत है यूहन्ना 1 पहली से 16 आयत तक। इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। उसमें ज़िंदगी थी और वो ज़िंदगी आदमियों का नूर थी, और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। एक आदमी यूहन्ना नाम मौजूद हुआ जो खुदा की तरफ से भेजा गया था। ये गवाही के लिए आया कि नूर की गवाही दे, ताकि सब उसके वसीला से ईमान लाए। वो खुद तो नूर ना था, मगर नूर की गवाही देने को आया था। हकीकी नूर जो हर एक आदमी को रोशन करता है दुनिया में आने को था। वो दुनिया में था और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई और दुनिया ने उसे ना पहचाना। और वो घर आया और उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन याकूब ने उसे कबूल किया। उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। यूहन्ना ने उसकी बाबत गवाही दी और पुकार कर कहा है कि ये वही है जिसका मैंने जिक्र किया है कि जो मेरे बाद आता है वो मुझसे मुकद्दम ठहरा, क्योंकि वो मुझसे पहले था। क्योंकि उसकी मामूरी
में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। तीसरी तिलावत है मोना नसीब के साथ। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पास्टर साहब ने पूरा बात दे दिया है, लेकिन जब हम चर्च में आते हैं, खुदा के हुजूर आते हैं, तो बाइबल मुकद्दस सुनने के लिए आते हैं। तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए हमने तिलावत सुनी। मेरे साथ निकाले बाइबल मुकद्दस में से दूसरा इब्रानियों के नाम पर उसे सुनता पर पहला बाब आखिरी आयत तक खुदा के कलाम से हम पढ़ने वाले होंगे। पाक कलाम में यूं मरकूम है, अगले ज़माना में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा पर हिस्सा और तरह बतरह नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माना के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया और जिसके वसीला से उसने आलम भी पैदा किए। वो उसके जलाल का प्रकोप और उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। वो गुनाहों को धोकर आलमे बाला पर किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा और फरिश्तों में इसी कदर बुजुर्ग हो गया जिस कदर उसने मिरास में उनसे अफजल मान पाया, क्योंकि फरिश्तों में से उसने कब किसी से कहा कि तू मेरा बेटा है और आज तू मुझसे पैदा हुआ, और फिर ये कि मैं उसका बाप हूँगा और वो मेरा बेटा होगा। और जब पलोटे को दुनिया से फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें, और फरिश्तों की बाबत ये कहता है कि वो अपने फरिश्तों को हवाएं और अपने आत्मों को आग के शोरे बनाता है। मगर बेटे की बाबत कहता है, ऐ खुदा तेरा तख्त अब्दुलाबाद रहे और तेरी बादशाही का आसा और रास्ती का आसा है। तूने रास्तबाजी से मोहब्बत और बदकारी से अदावत रखी, इसी सबब से खुदा ने खुशी के तेल से तेरे साथियों की बनिस्बत मुझे ज़्यादा मसा किया, और ये कि ऐ खुदा तूने इब्तदा में ज़मीन की नींव डाली और आसमान तेरे हाथ की कारागरी है। वो नेस्त हो जाएंगे मगर तू बाकी रहेगा, और वो सब पोशाक की मानंद पुराने हो जाएंगे। तू उन्हें चादर की तरह लपेटेगा और वो पोशाक की तरह बदल जाएंगे, मगर तू वही है और तेरे बरस खत्म ना होंगे। लेकिन उसने फरिश्तों में से किसी के बारे में कब कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ, जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पाँव तले की चौकी ना कर दूँ। क्या वो सब खिदमत गुजार होंगे नहीं जो नजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं। पाक कलाम में पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आए खुदा के कलाम को और खुदा के खादिम को आपकी तालियों की गूंज में बुलाएं। मसीह यीशु के अजीम नाम में सबको सलाम। और मैं भी कहूँगा ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਹੱਥ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ। हम ज़िंदा खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने आज दिन हमें अपनी इबादत के लिए भेजा है। अब मेरी नज़र का जिक्र अगर कुछ नहीं देखना 15 मिनट में जब सेमिनरी होते हैं वो कहते हैं 15 मिनट में कलाम सुना। रेडियो से पूछें, कहते हैं 5 मिनट आपको दे दिए गए हैं, इन 5 मिनटों में आपने अपना मैसेज वाइड अप करना है। हमारा खुदा तरतीब का खुदा है, वो कैटरिंग पर असर पड़ा बिजली की वजह से, लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और बेटी मोना कह रही थी कि साथ वाले कह रहे हैं कि पूरा चैप्टर दे दिया। कि आप ये समझें कि आज आपने बाइबल मुकद्दस को जो नहीं पढ़ते ना, आज से पढ़ना शुरू कर दें। हालेलुया। किताब मुकद्दस अक्सर कहता हूँ, किताब मुकद्दस ने हमारा खुदा हमसे मिलवाया, किताब मुकद्दस ने हमारा यीशु हमसे मिलवाया, किताब मुकद्दस ने पाक रूह को हमसे मिलवाया ताकि हम दुनिया में खस्ता हाल शिकस्त खुदा ज़िंदगी बसर ना करें।
बल्कि हम दुनिया में बाबरकत ज़िंदगी गुजारें, खुशहाल ज़िंदगी गुजारें। किनकी तरह? उन ईमानदारों की तरह जो रोए ज़मीन में दुनिया के लिए एक नमूना बने। और मेरा और आपका आका, मैं अक्सर जानबूझ के ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, आका है, इसका मतलब है खुदावन। की मतलब है हाँ मसीह ना खुदावन यसु मसीह नासरी। कुछ अल्फाज हम बाज़ औक़ात दीन के साथ जोड़ देते हैं, मौला, आका। मैंने जो फर्स्ट टाइम मैंने कोर्स लिखा उसमें मैंने यसु मसीह से कहा है कि वो मुश्किल क्या है, क्या है। मैंने यसु मसीह के बारे में मैंने कहा है कि वो मुश्किल कुशा है। और दुनिया में और भी लोग बहन को पता है कुछ और भी मुश्किल कुशा हैं, उनके बारे में बिहार में खासकर कहते हैं सारा मुश्किल कुशा है। लेकिन मैं कहूँगा मुश्किल कुशा सिर्फ एक ही है, उसका नाम यसु है। हालेलुया। मुश्किलों को हल करना उसका काम है। अगली बात मैं जरूर कहता जाऊँगा, हम बहुत जल्द कोशिश करेंगे बड़े स्टैंड लाने की, ताकि एतराज़ ख़त्म हो जाए कि मिनू माइक नहीं मिला, मिनू माइक नहीं मिला, मिनू माइक नहीं मिला। मैंने रात को तकरीबन मैंने परसों रात कुछ लोगों से कहा था कि हम कोशिश करेंगे, जब तक हम ये इंतज़ाम नहीं कर लेते हम किसी को माइक नहीं देंगे। बड़ी मुश्किल थी, भैन मोना गारी जी सी ते पिछले कुछ बातें कहना कलीसिया से हम पारों का फर्ज बनता है। तो हमने ये एतराज़ ख़त्म कर दिया। कुछ लोग खामोश हो जाते थे, बहन गा रही पर मैं क्यों गाऊँ। हमने कहा नाम आए होगा, मैं अपना नाम से ले रहा हूँ ताकि और कुछ लोग माइंड कर जाते हैं। ये हमने एतराज़ ख़त्म किया कि ये माइक फलां फलां के हाथ में है। जब खुदा हमें तौफीक देगा हम स्टैंड लाएंगे ताकि सामने माइक हो। तो हमने 3 आसमानी साहिब में से आज हमने तलावत की, इन्होंने गौर से सुना, उन्होंने ये जान लिया कि आज दर हकीकत बात हो रही थी खुदा बाप की, खुदा बेटा की, खुदा पाक रूह की। क्योंकि दुनिया में बहुत सारे नजरियात हैं कि कहीं और भी निजात है, कहीं और भी हयात है, कहीं और भी अब्दियत है, कहीं और भी फरदोस है। लेकिन किताब मुकद्दस कहती है सिर्फ कायनात का मालिक सिर्फ एक खुदा ही है। हालेलुया। और उसका बेटा यीशु ही है और पाक रूह ही है, जिन्होंने मिलकर इस पूरी कायनात को तख्लीक किया। और खुदा पाक कह रहा था अच्छा है। क्या है? अच्छा है। जब ये चैप्टर पढ़ा गया तो कह रहे थे कि आखिरी बात ना की गई। जिनके पास कलाम खुदा है मेरे साथ खोले पैदाइश की किताब उसका 2 बाब उसकी 3 आयत में आपके लिए तिलावत करना चाहूँगा। कलाम खुदा में लिखा है पैदाइश की किताब उसका 2 बाब उसकी पहली 3 आयत। सब मेरे साथ कहें सो आसमान, सारे को सो आसमान और ज़मीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ। और खुदा ने अपने काम को जिसे वो करता था 7वें दिन फारिग हुआ। और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया और बनाया फारिग हुआ। सामने साथ कहें आमीन। ईमान लाओ, कायनात का बनाना खत्म हुआ। अब कायनात के अंदर इंसान की जिम्मेदारी शुरू हो गई। खुदा ने सारी कायनात पर इंसान को निगरान बना दिया।
खुदा ने सारी कायनात पर खुदा ने इंसान को तसल्लुत दे दिया। खुदा ने सारी कायनात पर खुदा ने इंसान को हाकमियत दे दी और कहा बढ़ो फलो जमीन को महकूम और मामूर करो, हाकिम हो तुम जमीन पर। सारी उस स्टोरी को किताब मुक़द्दस के कायदे इल्म और कलीसिया जानती है कि एक बड़ा काम इसके बाद हुआ जब खुदा ने एक बाग लगाया। उस बाग में हमारे जद्दे अमजद आदम को वहां रखा। जब खुदा ने कहा ना कि अच्छा है, तो खुदा ने ये भी कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। मैं उसकी मानिद, किसकी मानिद? आदम की मानिद उसका मददगार, उसका हेल्पर, मैं उसके साथ खड़ा करूंगा। और मैं जब ये वाक़ा पढ़ रहा था, मैं खुद हंस रहा था। तो मैंने कहा तो था कि मैं कलीसिया से पूछूंगा कि सबसे पहला ऑपरेट कहाँ हुआ और किसने किया, सर्जन कौन था? कि वो सर्जन करने से पहला रूबे ज़मीन पर सबसे पहला ऑपरेट खुदा ने किया। खुदा ने उस शख्स को नींद दे दी, गहरी नींद, और उसके बाद उसकी पसली ली। क्या लिया? उसी को वो क्या लिया? और उलमा कहते हैं कि खुदा ने दरमियान से तीसरी पसली ली। अगर खुदा पाँव से हड्डी लेता या गोश्त लेता तो जो मर्द था वो कहता कि ये तो मेरे पाँव की क्या है, खाक है। अब भी बहुत से बेईमान लोग औरत को कुछ इस नज़र से देखते हैं, जो ईमान से खाली हैं, जो अक्ल से खाली हैं। और पंजाबी कहते हैं जुती आई आई ना आई पैरों ना आई, वो जहन्नुम के वारिस हैं, वो इब्लीस के फर्जंद हैं। मैं ज़रूर कहूँगा आज दुनिया में सबसे ज़्यादा शराब तलाक है। ये दुख के साथ कहता हूँ, किताब मुक़द्दस चर्चों में दे दी जाती है, उसने जोड़े के हाथों में, फिर ऊपर हाथ खुआए जाते हैं। हाथ रखो, कौन हुआ है? ये किताब मुक़द्दस हुआ है कि तुम मौत तक जुदा नहीं होगे। क्या नहीं होगे? मौत तुम्हें जुदा कर सकती है, कोई तुम्हें जुदा नहीं कर सकता। लेकिन आज बिल्कुल फर्क है। दुख के साथ कहूंगा खानदानी जिंदगियां बहुत अपसेट हैं, लेकिन कलाम खुदा सिखा रहा है जब तक इस नौजवान जोड़े की जो सोच थी वो यकसा थी। कलाम खुदा में लिखा है खुदा ठंडे वक्त में कहाँ आता था? बागे अदर में खुदा आता था। और मैं कई बार अपने आप से कहता हूँ, क्या खुदा के खादिम, जब मेरा खुदा आता था, दोनों आदम और हवा और सारे परिंदे और चुपाए खुशी से झूम उठते थे। हालेलुया। यह भी वही समय है जब चर्च में हम आते हैं, यकीन जाने दुनिया की सारी फिक्रें हम छोड़कर यहाँ आते हैं और यहाँ पर अपने खुदा के हजूर हम बरकत पाने के लिए आते हैं। कलाम खुदा में लिखा है खुदा ने 7वें दिन को क्या किया? बरकत दी। क्या किया? बरकत दी, उसे मुकद्दस ठहराया। और जो इस दिन खुदा के घर में आएगा वो क्या पाएगा? क्या पाएगा? वो बरकत पाएगा। अगर सुता रह जाएगा कुछ भी नहीं पाएगा। कुछ लोगों के करीब जो इतवार का दिन है, ये मेहमानों को बुलाने का दिन है, पार्टियां करने का दिन है, सैर सपाटा करने का दिन है, लेकिन ईमानदारों के लिए दिन बरकत पाने का दिन है। कलाम खुदा में लिखा है खुदा ने इस दिन को बरकत दी, मुकद्दस ठहराया। इसका मतलब है जो इस दिन खुदा के हुजूर में आएंगे वो मुकद्दस ठहरेंगे, वो बरकत पाएंगे, वो खुदा की वफादारी में रहेंगे, वो खुदा के साथ खुश रहेंगे। मैं खुश होया जदों मैनू आखण लगे आओ यहोवा दे घर चलिए। खुश हुआ करें मानो जो आवाज सुनते हैं इबादत का वक्त हो चुका है, चर्च में है, फिर जल्दी जल्दी क्या करें। और सैटरडे की नाइट को
या तो कपड़े प्रेस करवा के लाया करे या कर लिया करे। खुदा सब कुछ करेगा, सब करेगा, खुदा सब कुछ करेगा। इब्लीस ने फी ज़माना हर तरीके से कलीसिया को सताया। ये सताए जाने का अमल है। हमारे इतराफ में हमारे शहर को कहते हैं रोशनियों का शहर, द सिटी ऑफ लाइट्स, और रोशनियों का शहर। और हम बहुत क्या बात है। तो भी हर बात की हम अपने खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं ईमानदारों, हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारा खुदा हमें ईमानदार को संभालता है। और कलाम खुदा में लिखा है, एक खुदा आता था, तलकीन करता था, नसीहत करता था, तरबियत करता था कि आदम ये सारा बाग तेरे लिए है, इसके सारे फल तेरे लिए हैं। और खुदा ने हुक्म कहा था, आदम ये दरख्त जो तू देखता है इसका फल तूने, मेरे साथ शामिल, इसका फल तूने नहीं खाना। क्या नहीं करना? इसका फल नहीं खाना, ना छूना, न खाना। जिस दिन तू उसको खाएगा तो मर जाएगा। अब वो साथ भी था ना, निगरानी दी थी, उसकी निगरानी पर खुदा ने आदम को कायम किया था। इंज लगता है जिन्हें आदम किसी और साइड से निकल गया, पूरे बाग में विखंड रही, और दुश्मन ने आकर उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया। उसने आकर पहला सवाल किया, क्या खुदा ने ये सारे दरख्तों के फल तुम्हें खाने के लिए दिए हैं? और सारी माँ कह रही थी खुदा ने कुछ कमी की थी, खुदा ने कुछ कमी की है कि खुदा ने एक दरख्त का फल हमें खाने से मना किया है। खुदा ने कहा है कि इस फल का दरख्त तुम ना खाना ना छूना, जिस रोज तुम इसे खाओगे तुम मर जाओगे। जिस रोज तुम इसे खाओगे तुम मर जाओगे। दुश्मन जिसने आसमान पर बगावत की थी वो कह रहा था इसे खाने से तुम्हें क्या होगा, तुम्हारी अकल बढ़ जाएगी। खुदा कहने वाला खुदा हुआ, अकल सलीम खुदा देने वाला हुआ, पैदा करने वाला खुदा हुआ। ये आने वाला दुश्मन है जो कह रहा है तुसी आकल बन जाओगे, तुसी जनाब बन जाओगे। और काइंडली मेरी तरफ तवज्जो करो, गौर से कलाम को सुनो। मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं बच्चों से कह रहा हूँ, जमाने से कह रहा हूँ। और ईमानदारों, दुश्मन आया तो बड़ी जल्दी कान भी खुल गए, आंखें भी खुल गई जब हमारी माँ ने देखा। वो आज ये देखने के लिए क्या है? खुशनुमा है। क्या है? खुशनुमा है और खाने के लिए लजीज है। खाना तो पहले फैसले कर रही है, उसके बाद आगे बढ़ी। खुदा का खौफ जिंदगी से जाता रहा, वो रिफाकत जो बात से बरकत थी वो भूल गई खुदा की बंदी कि मेरा खुदा हर रोज ठंडे वक्त आता है। हम अपने खुदा की परस्तिश करते हैं, अपने खुदा की बंदगी करते हैं, अपने खुदा की इबादत करते हैं, अपने खुदा से इत्मीनान पाते हैं, अपने खुदा से खुशी पाते हैं। ईमानदारों, दुश्मन की चाल कामयाब हो गई और खुदा की बंदी बागे अदन में अपनी जंग हार गई। हाथ बढ़ाया, उस फल को लिया, उसके बाद दुश्मन कह रहा था तुसी खुदा के बन जाओगे। किसकी मान बन जाओगे? खुदा की मानिंद, मेरे को बल के पहचानने वाले बन जाओगे। उसने जब हाथ बढ़ाया, फल लिया, खाया, और देर खुदा का बंदा भी आदम भी आ गया। अब उसे भी खुदा की रिफाकत याद नहीं रही। बाज़ ईमानदारों, जज्बात भी हम वादे भूल जाते हैं। यकीन करें, आप किताब मुक़द्दस पर हाथ रखना भूल जाते हैं। और फिर इब्लीस हमें एक और बात देता है, जेड़ी तेरी जात है ना, तेरे झुकना को नहीं लिखा कोई नहीं, बीबियां के लिखना को नहीं लिखा कोई नहीं, छाड़ परा। यहाँ तक ये इब्लीस ऐसे सोच दे रहा था।
खुदा भूल गया, असल मालिक भूल गया, बरकत भूल गई, शादमानी भूल गई, खुदा की हजूरी का पास भूल गया। अब वो कह रही थी वाह मैं खाता बड़ा ही मीठा है, कमाल दे और तू ही खा रहा है। उसके बाद उस शख्स ने जो खुदा का बंदा था, खुदा के हाथों से बनाया गया था, जिसके नथनों में खुदा ने हयात का दम फूंका था, उसने भी उसे पकड़ा, फिर उसने नोश फरमाया, खांदा है बड़ा खुश हो रहा सी, लेकिन जब वो खा रहा था वो स्लो पॉइजन उसके बदले में काम करता गया। उसके बाद सुनो गौर से ईमान और सीखो। उसके बाद जब एक दूसरे को देखा तो अपने आप को बढ़ ना पाया। पहले भी इसी हालत में थे, आप देख रहे हैं कि उन्हें शर्म आ रही है, हम तो नंगे हैं। अब खुदा भी बने वक्त आ गया और खुदा ने कहा ए आदम तू कहाँ है? खुदा के सामने आने वाला, खुशी के साथ खुदा की बंदगी इबादत करने वाला शख्स दोनों एक साथ खुदा की हजूरी में ठहरते थे। अब छुपता है वो दरख्तों की ओट में और कहता है मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी, बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा। खुदा ने कहा तू मुझसे डरता है? मैं हर रोज तेरे पास आता हूँ, तू मेरे हजूर मेरी परस्तिश करता है और तू कहता है मेरे खुदा जैसा कोई नहीं। मेरा खुदा अजीम है, भला है, कदूस है, जलाल से भरा हुआ है। और तू क्या करता था? बल्कि जो तेरे साथ परिंदे भी मेरी हमदो सना करते थे। आज तो परिंदे भी परेशान हैं कि तूने मेरी नाफरमानी की है और तेरी शरीक हयात ने मेरी नाफरमानी की है। ईमानदारो, खुदा ने कहा क्या तूने वो फल खा लिया? इसके बाद मैंने तुझे कहा था जिस रोज तू उस फल को खाएगा तू मर जाएगा। खुदा दर हकीकत रूहानी एतबार से कह रहा था आदम जिस रोज तू फल खाएगा इब्लीस की तरह सजा पाएगा, तो मर जाएगा। आसमान पर जंग हुई, वो इब्लीस वहां मर भी गया, हार भी गया। इसी तरह उसने शिकस्त खुर्दा इस जोड़े को करने के लिए एक मशवरा दिया। अपने मशवरे में कामयाब हो गया, अपने काम करके वो साइड पर चला गया। उसके बाद जिल्लत और रुसवाई उनका मुकद्दर बन गई और कलाम खुदा में लिखा है खुदा ने फरिश्तों से कहा जो वफादार थे इनको बाहर करो, अब ये बाग का हिस्सा नहीं रह सकते। और रूहानी जिंदगी भी ईमानदारों की इसी तरह से है। दुनिया में बहुत से लोग तौबा तो करते हैं, पुराना जीवन तरक करके नया जीवन यीशु से पाते हैं, और जब दुश्मन कभी कभार आता है, हमने किताब मुकद्दस में सूरमाओं को गिरते देखा है। बच्चों यीशु कलाम सुनो, सूरमाओं को हमने गिरते देखा है। आज दुनिया में बहुत से ईमानदार मुंह के बाल गिरते हैं आदम और हवा की तरह। फिर उसके बाद नादामत और शर्मिंदगी उनका मुकद्दर बन जाती है और उनकी रातें रोने में गुजरती हैं। कहे खुदा तेरा पाक रूह मुझसे क्यों जुदा हो गया, तो मुझे माफ कर दे, मुझे बहाल कर दे। और मैं जरूर कहूंगा जैसे खुदा ने उस जोड़े से कहा उन्होंने नाफरमानी की, तो भी खुदा ने रहम और करम करने के लिए एक बड़ा वसीला यीशु मसीह उनके लिए खड़ा किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा आदम अब तू जमीन पर मशक्कत करेगा, और तेरे सबब से जमीन क्या हुई है? क्या हुई है? जमीन तेरे सबब से नाम की हो गई, फटकार का बाइस बन गई। तू जमीन पर मेहनत मशक्कत करेगा और खून पसीने की रोटी खाएगा। उसके बाद जमीन तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। मैंने देखे हैं, बहने देखे ऊंट कटारे, और वे गुजरना पैदल, वो पैरों से चुभते बड़े बुरी तरह ना, कपड़े लगे थे, कपड़े से बड़ा मसला हो जाता है। आज भी ऊंट कटारे हैं और आज भी रूए जमीन पर खुदा से बरगश्ता होने वाले ईमानदारों के लिए ऊंट कटारे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारी हयात
खुदा के जलाल का बायस रहे, खुदा की आवाज को सुनकर अमल में लाकर उस पर कायम रहना है, वरना फिर नदामत और शर्मिंदगी मुकद्दर रहती है। तो भी खुदा ने हवा से भी कुछ कहा कि मैं तेरे दर्द अज़ीम को बढ़ा दूंगा, तू दर्द के साथ अपने बच्चों को जन्म देगी। और खुदा ने कहा तेरा शौहर तुझ पर क्या करेगा, क्या करेगा, तेरे पे हुकूमत करेगा, कार वेला देगा, तेरा इंतजार करेगा, तो काम करके आएंगे तेरे रो पाएगा, खेती का सहन करके आएंगे ते काम करके आएंगे। कुछ ऐसे भी है कराची में बहाने को लोग कहते हैं नौकरी नहीं मिलती, जब इतना बड़ा शहर है, हर तरह से खुदा ने यहाँ पर सभी के लिए कुछ न कुछ रखा हुआ है। ईमानदारों, जब किताबें मुक़द्दस रसूल साहब के भूल जाते हैं, हम हैवानों से भी बदतर हो जाते हैं, लेकिन हमें चलना है। दाऊद कहते हैं मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। उसके बाद खुदा ने दुश्मन से कुछ कहा कि तू अपनी चाल तो चल गया, लेकिन अब मैं तेरे दरमियान और औरत की नस्ल के दरमियान क्या करूंगा, अदावत डालूंगा, तू उसकी एड़ी पर काटेगा और वो तेरे सारे को कुचलेगा। हालेलुया। और टाइम कहता है कि आगे नहीं बढ़ना। यीशु मसीह दुनिया में आ गया, उसने इब्लीस को, उसकी सारी कुदरत को अपनी एड़ी से किया, नेस्त नाबूद किया। हालेलुया। यीशु मसीह ने रोज़ ज़मीन पर बाबरकत मुनादी की, मुर्दों को जिंदा किया, लंगड़ों को चलाया, कोड़ी को पाक साफ किया, लाइलाजों को शिफायाब किया। एक ही ऐलान था, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। ऐ इंसान, तू खुदा के हजूर से जुदा हुआ है। लेकिन मैं आ गया ना, टाइम ज्यादा लेता तो वरना ये तीनों जो मैंने बैगार पढ़वाए चाहता था कुछ उधर बोलता मैं। यीशु मसीह आ चुका है, अबदी जिंदगी का मालिक हमारे लिए अपने लहू को देकर हमें पाक करने के लिए अपना पाक लहू उसने दिया है, ताकि हम अब बरगश्ता न रहें, मारे न फिरें। एनस ने कहा, वो तो कहते हैं खादी में हम खुदा के बलाएं सताएं, क्यों मैं कहता हूँ लोग हैं हम खुदा के बलाएं, ये मुसीबतें, ये बीमारी, ये परेशानी, ये बदूर क्यों सताएं। जब भी जाते हैं कलीसिया में, पास्टर साहब नींद नहीं आई, 3-4 लोग कह रहे साहब नींद जाती रही, पूरी से कोई आए, कोई शिफा चाहिए, यीशु शाफी नहीं चाहिए। मैंने उनकी दुआ की, वो कहने लगे राती सुते साहब 10:30 बजे उठे, ये सबसे रिश्तेदारी कर रहे हो। मैं कह के आया था जिन्हें नींद थी शिफा दी और हजूर आए हो। हाँ आ रहे ईमानदारों, हमें उसके हजूर में आना है, उससे बरकत पानी है, उसकी बंदगी और इबादत करनी है। वो वादा करता है तुम खुदावंद में खुदा की क्या करना, उच्ची करो, क्या करना, तब तुम्हारी रोटी पानी पर उच्ची करो, क्या करेगा, और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। लगेगी लेकिन रहेगी नहीं। असी सारे काम पास्टर करन चर्च जाना बड़ा मुश्किल है, और मैं कहता हूँ चर्च में आना बात बरकत बात है, और ये मुकद्दस दिन है, हम मुकद्दस बन जाएंगे। किताबें मुकद्दस से दोस्ती कर लो, हालेलुया, इसे पढ़ना शुरू कर दो, खुशियां साथ साथ रहेगी, हालेलुया, शिफा साथ रहेगी, नजात साथ रहेगी, हयात साथ रहेगी, शाफी साथ रहेगा, हालेलुया। खुदा हम सबको अपने कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और इस खूबसूरत बाबरकत कलाम के लिए हम खुदा का शुक्र करेंगे। और कलीसिया में जिस किसी को खुदा का रूह बारे कलाम खुदा के लिए शुक्र गुजारे के दुआ कर सकते